what is that amount of money do you think beyond which money doesn't make any difference in your life? 20 million. So that's about 160 crores. Can you explain why is it 20 million? You buy a house, you buy your fancy toys that you want, a couple of cars, you make sure there's enough money for, if you're married, kids, their education. And then you have to find a different purpose in life. It cannot be making more money. That leads to unhappiness. I look for good, solid friendships and good, healthy relationships. Right. I now am living for experiences. I'm not living to make more money. How do you plan those things? I don't plan. It just happens. I take one day at a time, and if I learn something new during the day, I find it as a successful day. Like I said, I'm not waiting for any financial outcome anymore. There's like a young viewer, young entrepreneur who's a part of the audience or watching this digitally. What would be your key advice for somebody just starting up? यार मैं ज़्यादा ज्ञान और एडवाइस देता नहीं हूँ. मेरे को लगता है कि इंडिया में तो स्टार्टअप वेव अभी शुरू हुई है. If you see where we were when I started 2016 जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो लोग ना बिजनेस को नेगेटिवली देखते थे. एंटरप्रेन्योर वर्ड भी नहीं होता था. तो क्या होता, एक वो गवर्नमेंट जॉब्स का एरा था, फिर वो MNC जॉब्स का एरा आया. And I think now is the time when people don't mind joining startups or starting up on their own because they have seen success stories. They have seen that you can do much better than what you were doing. अगर आप किसी कैफे में जाओ, हर टेबल पे कोई ना कोई अपने दोस्तों से बात कर रहा है, यार मुझे एक नया वेंचर स्टार्ट करना है, क्या करना चाहिए. If you go to colleges, there are people who are ready to start up soon, and there is no better time than now because capital is available. There are so many accelerator programs, as they say that India will be the startup capital of the world, and inshallah that should happen soon. बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, सबको लगता है पैसा चाहिए तो कुछ नहीं है. सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा. heard Jeff Bezos saying this, कि stress doesn't come from working, stress comes from not working. Like he said, stress comes from when you want to work on something, you know you can do it and still you're not able to do it for XYZ reason. That's when you start doing, because your body is looking forward to something and then it can't achieve it, and because it can't achieve it, there's a certain level of frustration. That frustration turns into either anger, anxiety or stress. Now, what is it that makes you happy, excites you, exhilarates you now? You're not flying, you're not driving fast cars. Nothing. I have none of these. The pursuit of happiness is one that would have to be defined in detail first. But the pursuit of happiness in my case doesn't involve, first of all, even if I wanted to, like other people might want, travel abroad more, spend money, live exceptionally well, something that brings happiness. That if other people think that you brought happiness to others and that you've been useful and continue to be useful, that's a form of happiness. कुछ लोग छुपाते हैं कि यार किसी को बताऊंगा नहीं, मैं आई जस्ट पास इट ऑन टू माय किड्स, तू सीख ले और किसी को नहीं बताऊंगा. आई फील दैट इज रॉन्ग. कि ज्ञान बांटने से दुगना हो जाता है और न बांटने से हो जाता है जीरो. करेक्ट. हमारी जनरेशन के काफी फाउंडर्स जानते हैं, और स्टैटिस्टिकली अगर मैं देखूं ना, जो लोगों ने पैशन से स्टार्टअप बनाई है उनकी स्टार्टअप चल रही है, बढ़िया है. जिन लोगों ने पैसे के लिए बनाई है उनकी नहीं चल रही. दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग. बिल्कुल बिल्कुल भाजी. कपिल जी, जी जी, मैं सिंपल सेंटेंस में बोलती हूँ, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, आप काम के पीछे भागो, लक्ष्मी आपके पीछे भागो.
बना देते हो तो आप अज्यूम कर लो कि आपको 100 करोड़ रुपए बैंक में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मतलब 3 करोड़ रुपए महीने की अगर सेल होती है तो आप 100 करोड़ के आदमी हो। अगर आप 3 करोड़ रुपए महीने की सेल कर रहे हो और आप 2% का भी प्रॉफिट कर रहे हो तो आप कल मेरे पास आ जाना और मुझसे 3x या 2.5x की वैल्यू पे पैसे। तो अब सबको पता लग गया 100 करोड़ रुपए कैसे। My last salary was 55 lakhs. I got a first job at Google, then YouTube, Cafe Coffee Day, Flipkart. These were some of the companies where I held positions. I used to get 3.5 lakhs in my bank account every month. And when I started freelancing, my first freelance gig was 50,000 rupees. To earn 1.5 lakhs a month, I traveled from Bangalore to Bombay and back every single week for 6 months. But I did. Business is a marathon. It's not a sprint. And you must run the course, no matter what's happening. And if you can't run, you must walk. And if you can't walk, you better crawl. And the courage to do that is the only way to build a rock solid business. हर साल प्रॉफिट्स छाप रहे हैं। अब 2018 में जब हमारा वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया तो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया पब्लिक करके, ठीक है। वो बिजनेस अपने अर्ली फेज में, तो हम उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे लगा रहे थे। तो मीडिया बिजनेस का जो एक प्रॉब्लम है ना, तो आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑडियंस नहीं होता तब तक आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। तो आपका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, जब आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो, फिर आपका एक ऑडियंस साइज आ जाता है, फिर आप उसको मोनेटाइज करते हो। तो वो स्किल तक की जर्नी है। तो अभी हमारी कंपनी नेगेटिव में, इनशॉर्ट्स एज ए ब्रांड नेगेटिव में नहीं है। इनफैक्ट अगर हम इनशॉर्ट्स के बिजनेस को लेंगे, हमने उस पर जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था उससे अधिक हम प्रॉफिट्स बना के बैठे हैं उसमें। Nice. In his heart, he was absolutely clear that he wanted to build the world's biggest refinery. इंडिया में ना प्रॉब्लम है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर एक प्रोडक्ट पे एक एमआरपी छपा होना जरूरी है। आप उससे ज़्यादा बेच नहीं सकते। वो अलग बात है, पीवीआर अपने पानी की बोतल पे 150 रुपये छपा देगा, और वो 150 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकता। इंडिया के बाहर वो कॉन्सेप्ट नहीं। आप सेम कोक का कैन लो, उस पर कोई एमआरपी नहीं होता। आप अपने रेस्टोरेंट में वो $5 का भी बेच सकते हो, और हो सकता है आपको 25 सेंट का वॉलमार्ट में मिले। इंडिया में वो प्रॉब्लम है। सो एवरी प्रोडक्ट हैज एन एमआरपी, दैट बिकम्स अ बिग कंस्ट्रेंट। 4-5 नौकरियां करी, बट एक ना वो कीड़ा था मेरे अंदर कि मुझे कुछ अपना ही करना है। तो फिर मैंने बिजनेसेस भी बहुत करे। जैसे मैंने पहले 2 साल काम किया, फिर एक बिजनेस शुरू किया, फिर आईएएस भी गया, फिर मैंने एक बिजनेस शुरू किया। तो मैंने ट्राई करता रहता था, क्योंकि कहीं भी जाता था 1 साल काम करता था तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी अंदर ही अंदर कि यार किक नहीं आती थी मुझे कहीं भी जाके। और मुझे अंदर से वो लगता था कि ऐसा क्या है। मैं सिटी बैंक में था तो मुझे लगता था ऐसा क्या कर लिया, मैं भी बना लूंगा एक बैंक। फिर मैं JBL गया, मैंने बोला मैं भी एक ऑडियो का ब्रांड बना दूंगा, बना दिया। क्या जिंदगी में पावर ज्यादा जरूरी है या पैसे? ये डिपेंड करेगा। ये मतलब मैं सही बताऊं तो पैसे से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन उस पैसे को जेब में रख के और कोई पावरफुल आदमी आके आपको थप्पड़ मार दे तो सारी बात वहीं ज़ीरो हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है बिना पावर के अगर आप एक बढ़िया सा अमाउंट कमा रहे हो तो फिर उसके बाद आपको पावर चाहिए।